Dear students, today we discuss on a new topic, Ohm's law. मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ 12th क्लास का टॉपिक है ये, और बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और काफी अच्छा टॉपिक है। और ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा सा हटके देखने की कोशिश करेंगे हम। ओहम्स लॉ टॉपिक हमारा। ओहम्स लॉ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओहम्स लॉ, जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ये आपने एक कंडक्टर लिया, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सारे। हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। मेरे लास्ट वीडियो को जाके देखें आप, उस पे आपको करंट के बेसिक कंसेप्ट को समझाया था कि करंट कैसे फ्लो करता है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यू मोशन में है। ये इलेक्ट्रॉन है जो आपके ये कॉन्टिन्यू मोशन में है, कॉन्टिन्यू मोशन में है। लेकिन ये एक डेफिनेट मोशन में नहीं है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है। दे आर नॉट अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, बट दे कंटिन्यू मूव in all possible direction and they strike to one another. And finally, total velocity, total, or we can say that resultant velocity be zero. इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है? जीरो। और जब तक ये एक रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब इस पे आप टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस पे पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी चार्ज पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये इस नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके इफेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करेंगे। क्योंकि इस पोटेंशियल से इसमें फील्ड बनेगी, जैसे ही वो फील्ड बनेगी तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम्ब फोर्स बोलते हैं हम जिसको, वो एग्जर्ट होगा। Mean all these negatively charged particle electron experienced electrostatic force under the effect of external voltage that provide electric field in this region. Due to this Coulomb force, they accelerate in a definite direction and they move from lower potential to higher potential. Move from lower potential to higher potential, and they move in same direction, and their final or average or resultant velocity now not be zero. It became a definite value, and that average velocity called drift velocity. Drift velocity. And when charge particle, these charge particle electron stream or beam move in a definite direction, it means that there is current produced, because current is charge per unit time. In a definite time, these electron move from one terminal to another terminal. ये संभव, ये पॉसिबल किसकी वजह से है? इस पोटेंशियल की वजह से। As we rise the potential, or we can say that we increase the potential difference between these two terminal, then amount of electric current should be increases or must be increases. Finally, we can say that potential proportional to current. As we rise the potential, electric current also increases, because there is increase in potential difference between two terminal, then electric field strength also increases, and due to this acceleration increases and amount of current also increases. Here we can say that potential proportional to electric current. But ये यहाँ ध्यान रखने की बात है कि क्या पोटेंशियल ही करंट को इंक्रीज करेगा, बाकी कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा? होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चलेंगे तो ये स्ट्राइक करेंगे कॉन्टिन्यू, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी स्ट्राइक करेंगे। अब जो हमने कंडक्टर लिया उसके मटेरियल के साथ भी स्ट्राइक करेंगे, यानी दे कंटिन्यू
when they move from low potential to high potential, they strike to the other electron and material of this conductor and continue collision. They lose energy and again they start to rise their velocity under the effect of electrostatic force. Due to this restriction produced in it is called the resistance. Resistance is nothing, it is the obstacle or restriction possessed by the material is called resistance. यहां तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं अब इसको रीअरेंज कर देता हूं। ओम्स लॉ ने क्या कहा था? ओम्स लॉ की डेफिनेशन है अंडर कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मीन टेम्परेचर, physical quantity mean temperature, comma pressure, comma length, comma area, etc. Under constant physical quantity, and physical quantity are these: temperature, pressure, length, area, etc. Potential difference applied across the terminal of conductor is directly proportional to electric current passing through it. ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि हम यहाँ इनकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट लेनी है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन करेंगे। और ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेंथ है, एरिया। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी आप कांस्टेंट कर दें तो किसी भी कंडक्टर के लिए उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके उस वायर के अंदर से जो करंट पास होगा उस करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। इसको एक बार आप देख लीजिए और इसको मैथमेटिकल लिख देता हूं मैं कि मान लीजिए ये हमने एक डायग्राम से समझेंगे। ये आपका एक कंडक्टर है जिसका एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, ये एक्स वाई इसके टर्मिनल हैं। यहाँ हमने पोटेंशियल अप्लाई की है, वी पोटेंशियल अप्लाई की है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मीन दे आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बैटरी। और ये एक्सटर्नल बैटरी से जब कनेक्ट हैं और उस बैटरी की जो वोल्टेज हमने ले रखी है वी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है, ये मैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंट बताऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन करंट एक्चुअल में इसमें हमेशा कन्वेंशियल करंट लेते हैं, वो डायरेक्शन ये होती है आई। ये डायग्राम है सिंपल सा। तो फ्रॉम डायग्राम, सो पोटेंशियल डिफरेंस directly proportional to electric current, or we can say that V proportional to I, or V is equal to Ri. Here R is constant, here capital R is constant called resistance,
इस कांस्टेंट को हम क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस। सो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला। यहाँ ध्यान रखना है आप लोगों को, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट। अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज होगी तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। और दूसरी ध्यान रखना है, ये अप्लाई होगा कंडक्टर पे, अदर किसी पे नहीं है। कहीं आप सोचें कि इंसुलेटर पे वैलिड होगा या सेमी कंडक्टर पे होगा, नहीं, ओनली फॉर कंडक्टर। Here some important things is unit of resistance. Unit of resistance, we write the unit of resistance is ohm, and symbol is like this. This is the symbol of ohm. Or from this formula, this is volt, this is ampere, volt per ampere also the unit, but generally we use this unit. Ohm be the unit of this. Next, we write as dimension formula. Dimensional formula of R is, आपको रटने की जरूरत नहीं है डायमेंशन फॉर्मूला, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। आपको निकालना आना चाहिए कि डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालें। देखिए मैं यहां लिखता हूं, आर क्या है आपका, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज का आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमने वोल्टेज पढ़ी हुई ऑलरेडी, कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल विधि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो हम पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर चार्ज, और नीचे एम्पियर है ही। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला सबको आता मिलेगा, M1 L2 T-2। चार्ज का हमें पता नहीं होता, चार्ज को करंट में कन्वर्ट करो, क्योंकि चार्ज आपकी कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल नहीं है। तो चार्ज का अगर डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद हो तो A1 T1 होता है, और करंट का आपका डायमेंशन फॉर्मूला A होता है। तो रीअरेंज करके देख लो इसको, M1 L2 T, देखो 2 यहाँ माइनस का, एक ये आ जाएगा -3 और A-2। ऐसे आपको निकालना आ जाना चाहिए, रटना नहीं है। आप इसको समझिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉर्मूले पता लग जाता है कि इसका फॉर्मूले। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, करंट दे रखा हो, आपको वर्क डन दे रखा हो, चार्ज का मोमेंट दे रखा हो, आपको पता लग गया कि रेजिस्टेंस का ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और ये आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, आप यहाँ रख दो इसको, यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला रखोगे तो क्या हो गया, M1 L2 T-3 A-2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। तो इस तरीके से आप निकालना सीख लें इसको। क्लियर है ये बात? इसको मैं यहां से हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसको निकालना है। एक यहां से इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि ये आपका रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। आप जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी यहाँ से बना देते हैं। तो देखिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, ज्यादातर बच्चों के कंफ्यूजन क्या रहता है कि फॉर्मूला उन्हें याद होता है और फॉर्मूले में V अपॉन आई आया है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू V, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आपको क्वेश्चन दे दे
कि ये V वोल्ट की बैटरी को रिप्लेस किया है 2 वोल्ट की बैटरी से, तो इसके कंडक्टर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे सिर्फ क्रैमिंग करके चलते हैं वो तो ऐसा सोचेंगे कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, अगर वोल्टेज डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वोल्टेज वेरिएशन से आपका करंट इक्वल अमाउंट, इक्वल रेशियो में चेंज होता है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम वैल्यू से राइज होते हैं। इसलिए मैं पहली लाइन में इसके फैक्टर नहीं लिख रहा, एक इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, resistance of conductor not depend on potential and current। ये दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रख लें। ना ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता और ना ये करंट पे। अब इसकी डिपेंडेंसी है, फर्स्ट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन, डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, एरिया, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। नंबर 3, it depend on टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से भी अफेक्ट होगा। वी कैन से दैट फिजिकल क्वांटिटी। और लास्ट हमारा 4th नंबर पे आ जाएगा, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, और कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर लेना इसको और ध्यान रखना कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। ये पहली लाइन में जो लिखवाया है ये दोनों आपके भ्रम है। ऐसा लगता है कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन नहीं करेगा। इसके बाद हम इसके ग्राफ को पढ़ते हैं। मैं इस डायग्राम को एक बार हटा देता हूं यहाँ से। चलो डायग्राम में दोबारा इसके नजदीक बना देता हूँ, उधर हम इसको पढ़ लेंगे। एक बार मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये हमने एक डायग्राम लिया था, लेंथ, एरिया, और इसके साथ हमने एक वोल्टेज कनेक्ट की थी, V वोल्ट की बैटरी, ताकि आप समझ लेंगे। बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। V वोल्ट की बैटरी थी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको समझा देता हूँ नेक्स्ट को। लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। देखिए मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, कुछ इसमें और अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ेंगे अभी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब एक इसके ग्राफ की बात करेंगे हम कि V और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है, और ये पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला आप याद रखना, R इज इक्वल टू VI है। मैं इसको यहां से पूरे को साफ कर देता हूं। अब हमें ग्राफ बनाना है, VI ग्राफ। हम बना रहे हैं VI ग्राफ। हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा आपके लिए। स्ट्रेट लाइन बना ले, वर्टिकल लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये लाइन आपकी करंट लाइन ले लो या वोल्टेज लाइन ले लो, इसको आप करंट लाइन ले लो। ये आपका ओरिजिन है, या इसको करंट लाइन ले लो, इसको वोल्टेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी किताबों में ऐसा मिलेगा। और फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं,
v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये आपका फॉर्मूला है। इसके लिए हम वी आई ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए v और i दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं आपके, एक साथ वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब हुआ कि इनका ग्राफ जो होगा वो लिनियर ग्राफ होगा, ये ग्राफ हो जाएगा और ये ग्राफ आपका आर को रिप्रेजेंट करेगा। या हम आर को छोड़ दें, सिंपल लिख लें एक बार, तो यहां लिखेंगे हम वी आई ग्राफ इज लीनियर। कैसा ग्राफ होगा इसका, लीनियर। स्ट्रेट लाइन भी इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दोनों एक ही शब्द हैं। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, तो इस ग्राफ के लिए स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप और एरिया दो चीज होती है किसी भी ग्राफ में, एक स्लोप होता है और एक एरिया होता है। तो यहां हम किसकी बात करेंगे, स्लोप की। स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है हमारा, टेन ऑफ थीटा से। टेंजेंट थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हम किसी पॉइंट पे इसको ऐसे, अगर हम ये डिवाइडेशन कर दें इसका, ये वैल्यू आपकी v है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी v, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी i, यही बनेगी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की इस डायग्राम में देखें, ये o है, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। ये थीटा है, इसके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपकी। हमें पता है थीटा के जो अपोजिट में साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 के अपोजिट में होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और ये जिस पे एंगल बना हुआ वो आपका बेस होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर टू बेस होता है, यानी ए बी अपॉन ओ बी, और ये आपका v है और ये आपका i है, यही बनेगा। अब v अपॉन आई क्या होता है, r, और इधर हो गया स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू r। अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो ये वैल्यू r को रिप्रेजेंट करेगी। अब ऐसा हम पढ़ लेते हैं, पेपर में ऐसा नहीं, इसका दूसरा केस आ जाता है, सेकंड केस। दोनों को समझने की कोशिश करना, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या देगा वो, आपको यही चीज दे दी, एक ग्राफ बना दिया और उसने कह दिया कि ये ग्राफ है, ये v और i ग्राफ है, और v और i का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहेगा। कंडक्टर के लिए ये ओरिजिन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया आपका। ये एंगल है आपका थीटा। अब हमने तो पढ़ लिया ना, स्लोप ऑफ ग्राफ ये होता है, यानी यहाँ जो आपका फॉर्मूला बना है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। आर की वैल्यू वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट है, आर की वैल्यू टेन थीटा। अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो वही केस लेना है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर भी एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। यहाँ भी आपका ग्राफ में थीटा दिया हुआ तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। स्लोप फॉर्मूला हमारा टेन थीटा ही होता है, और यहाँ टेन थीटा देख लीजिए, ये 90 डिग्री एंगल है, थीटा है इसके अपोजिट में, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस आपका ओ बी। ए बी की वैल्यू देखो, ये आई है तो ये आई है, ये वी है तो क्या हो गया, आई अपॉन वी, आई अपॉन वी। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, वी अपॉन आई, तो ये वन अपॉन आर, क्या हो गया ये आपका वन अपॉन आर। क्या लिखेंगे यहां पर कि स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू वन अपॉन आर।
स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो गया 1/r, और यहाँ क्या है r, चीज एक ही है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ r जो है आपका 1/tan थीटा है, 1/tan थीटा है। मैंने ये दोनों क्यों चर्चा की है आपको, कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है यहाँ पे कि पेपर में आप ये पढ़ के जाते हो ऐसे ग्राफ दे दे, ये पढ़ के जाते हो तो ये दे दे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको tan थीटा निकालना है। और थीटा अगर आई के साथ एंगल बने, सुनना मेरी बात को, थीटा जो आपका स्लोप का एंगल थीटा अगर वो आई के साथ बने तो r tan थीटा से रिप्रेजेंट होगा। अगर थीटा आपका वी लाइन के साथ बने, वोल्टेज के साथ बने, तो r आपका 1/tan थीटा हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसके ग्राफ को बारीकी से समझना है आपको। पहली चीज तो ये है कि कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस V और I का ग्राफ है वो स्ट्रेट होता है या लीनियर होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको थीटा दिया मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, वो कह देगा 30 डिग्री एंगल बनाता है ये देख लेना है कि वो आई के साथ बना हुआ है या वी एक्स के साथ बना हुआ है, आई एक्सिस के साथ है या वी एक्सिस के। अगर आई एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है तो रेजिस्टेंस tan 30 हो जाएगा। अगर आपका वोल्टेज एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है 1/tan 30 हो जाएगा। ये डिफरेंस नोट कर लेना आप लोग। ये हमारे रेजिस्टेंस का ग्राफ से रिलेटेड बात है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अब मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में और पढ़ाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, समझ में आए ग्राफ। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे। टॉपिक है हमारा अब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है जो कंडक्टर के द्वारा ऑफर की जाएगी। इट इज एन obstacle or restriction offered by conductor in the flow of electron into में charge carrier charge offered by conductor in the flow of electron passing through them, उसको हम रेजिस्टेंस कह देंगे। एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इट इज एन ऑब्स्टेकल और रिस्ट्रिक्शन offered by the conductor in the flow of electron, represented by capital R, and unit is unit ohm, and symbol is this। इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम कंडक्टर के लिए। फर्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर directly proportional to length of conductor। रेजिस्टेंस की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप लेंथ को राइज करेंगे तो वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस राइज होने लग जाएगी।
अगर आप उसकी लेंथ को कम करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आर प्रोपोर्शनल टू एल, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है रेजिस्टेंस के ऊपर अफेक्ट है वो एरिया का पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। यहां जो ये एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये ध्यान रखना। और आपका जो ये बनेगा आर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बनेगा। सेकंड केस ये है। और थर्ड हम मटेरियल बोलते ही हैं। तीसरा है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, कंपेयर और कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो हम यहाँ देखते हैं। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। दोनों को हमने कंबाइन किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। और जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम, एक न्यू कांस्टेंट है रो, रो इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यहां नया जो कांस्टेंट आया रेजिस्टिविटी, ध्यान रखना ये रो रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, not on the dimension, not on the dimension of conductor, dimension of the conductor। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और रेजिस्टिविटी के लिए आप फॉर्मूला बनाएं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। और यूनिट लिखेंगे, मैं यहाँ कुछ बात लिख देता हूँ। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी की यूनिट लिखेंगे तो ओहम मीटर, ओहम मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी ओहम मीटर। ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि रेजिस्टिविटी और इस रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, इन पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर के कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।